السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم آئے ہیں سیکنڈ فائنینشیل کرائم سمٹ میں جو کہ کراچی میں ہو رہا ہے. آج بہت ہی امپورٹنٹ لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جن کا تعلق ہے پاکستان کی اکانومی سے، بینکنگ سیکٹر سے. اور سوال یہاں پر یہ لے کر آئے ہیں کہ FATF جس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، فروری کا مہینہ، اس کے لیے پاکستان تیاریاں ہیں. بینکنگ سیکٹر کے اندر کرائم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کس جگہ پر ہے پاکستان میں، اس کی پریکاشنز کے لیے کیا کچھ کام ہوا ہے، ٹیکنالوجی میں ہم کس جگہ پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کو مزید کیا چیلنجز درپیش ہیں اور کیا کیا سکسیس ملی ہے. سب سے پہلے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر ڈاکٹر رضا باقر سے، جو کہ اس سمٹ کے چیف گیسٹ بھی ہیں، اور وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس سمٹ میں، آئیے دیکھتے ہیں. اس ایریا میں ہم نے کافی پروگریس کیا ہے. جو FATF کی اپنی اسیسمنٹ ہے جو پچھلی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے دیکھا کہ مئی اور سپٹمبر کے درمیان کتنا پروگریس ہوا ہے، انہوں نے خود ہی نوٹ کیا ہے کہ اس دوران میں پاکستان نے کافی پروگریس کیا. IMF کی جو پریس ریلیز نکلی تھی ان کی مشن کے بعد، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ہیز میڈ سگنیفیکنٹ پروگریس ان دیز ایریاز. اور آج کی جو کانفرنس ہے اور جو ہم باقی کام کر رہے ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اس مومنٹم کو جاری رکھتے ہوئے جو باقی ایریاز رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم سکسیسفلی کامیابی سے پورا کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب فارن ایکسچینج پہ پریشر تھا اور اس پریشر کی وجہ سے ہمارے جو ریزروز تھے، ہمارا جو خزانہ تھا وہ خالی ہو رہا تھا ایسا. اس پریشر کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کو کچھ سخت اور مشکل فیصلے کرنے پڑے تھے. ان فیصلوں میں سے کچھ ایسے تھے جو امپورٹس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے پیمنٹس بھیجنی ہیں باہر، اس کو ریسٹرکٹ کیا. اب جیسا کہ ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں اور ہماری فارن ایکسچینج مارکیٹ اب ایک آرڈرلی طریقے سے ٹریڈ کر رہی ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرن اراؤنڈ آیا ہے اس کا فائدہ ہماری مینوفیکچرنگ کمیونٹی کو، اور اسی لیے ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ہٹا رہے ہیں جو پہلے لگائی گئی تھیں کیونکہ حالات مشکل تھے. اور ان کو آہستہ آہستہ ہٹانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہمارا پروگریس ہوا ہے ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کی سائڈ سے، جو ہمارا پروگریس ہوا ہے انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز کی اسیسمنٹ کی سائڈ سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فائدے ہیں یہ آہستہ آہستہ مینوفیکچررز اور باقی لوگوں تک بھی پہنچیں. تو جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، جس کا ہمیں کافی کانفیڈنس ہے، اسی طرح ہم جو ریسٹرکشنز پہلے لگی تھیں ان کو آہستہ آہستہ ہم ہٹاتے جائیں گے. ناظرین، صغیر مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں HBL کے. صغیر صاحب فرمائیں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان میں، خاص طور پہ جب FATF کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹیرر فائنینسنگ، منی لانڈرنگ، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اگر بینکنگ سیکٹر کی بات کریں تو فالودے والے کا اکاؤنٹ نکل رہا ہے، کس کس کا اکاؤنٹ، بے نامی اکاؤنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس پر کنٹرول کرنا اور اس چیلنج کو پورا کر لینا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر اب کس جگہ پر ہے، اور نیکسٹ یا اس فائنینشیل ایئر کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے ہم کافی حد تک کنٹرول کر پائیں گے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می، اپریشیٹ اٹ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک بہت ضروری ٹاپک ہے اور ہمیں اس پہ بڑی اوپن ڈسکشن کرنی چاہیے. فرسٹ آف آل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ کئی ملکوں میں ہو چکا ہے. میں نے اس سے پہلے کچھ اور ملکوں میں بھی کام کیا ہے جہاں اسی طرح کے چیلنجز تھے اور ایشوز جن سے ہم ڈیل کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب ایک ملک میں اس بات پہ سمجھ آ جائے کہ اس کا کوئی ایشو ہے، اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے، ویدر پرسیپشن ہو یا ریئلٹی ہو، تو اس کو ہیڈ آن ڈیل کرنا چاہیے. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے بات کی بینکوں کی، تو میں بینکوں پہ ابھی آتا ہوں، لیکن خالی بینکس اکیلے نہیں کر سکتے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سچ بات ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. It has to be a national agenda, it has to be an industry agenda, and it has to be an institutional agenda. میں نے اندر بھی جو بات کی، میں نے یہ کہا کہ ہر کمپنی کو اپنا رول ادا کرنا ہے. ہر کمپنی کو سمجھنا ہے کہ مجھے اس ایریا میں کیا امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. اس میں اب آ جاتے ہیں بینکوں پہ. بینکس میں ہمیشہ سے ایک ریکوائرمنٹ رہی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دیئر کسٹمرز، بٹ دا فیکٹ از کہ
इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान हमारे यहाँ बहुत कम लोग बैंकिंग करते हैं, लोगों को बैंक्स का और बैंकिंग के बारे में कम नॉलेज था। तो कई दफ़ा शुरू में बैंक्स लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि वो बैंकिंग सिस्टम में आए। उस प्रोसेस में सच बात है लोगों के साथ हम उतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे थे जितनी कि एक बैंक को मांगनी चाहिए। या ये कह लें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कम था, जैसे अभी जो हम थंब इम्प्रेशन की बात करते हैं, इससे बड़ा कंट्रोल हुआ है मैं हमेशा कहता हूँ कि जी टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी एक टूल है, माइंडसेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडसेट हो तो आप कोई काम मैनुअल भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी उसको एफिशिएंट कर देती है, टेक्नोलॉजी उसको बेहतर कर देती है, उसकी कॉस्ट कम कर देती है। पहली चीज़ आपको चाहिए कल्चर, पहली चीज़ ये चाहिए कि हर बंदे के दिमाग में ये सोच हो कि जब मैं कहूँ कि मैं अपने कस्टमर को जानता हूँ, नो योर कस्टमर, यू एक्चुअली नो योर कस्टमर। आप उस कस्टमर के बारे में समझते हैं कि वो क्यों अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए वो पैसे लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, वो पैसे की जनरेशन कहाँ से हुई, सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, और वो पैसा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। बात तो अच्छी है, लेकिन सर जो अभी तुमने देखा कि एक दौड़ लगी हुई थी माजी के अंदर कि जनाब कौन कितना रेवेन्यू लेकर आएगा, यानी वो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बनिस्बत इसकी कि जो आप कह रहे हैं अभी। वही तो मैं कह रहा हूँ, कल्चर की बात है कि बिजनेस करें, अच्छा बिजनेस करें, डू गुड बिजनेस विद गुड कस्टमर्स। अब दौड़ नहीं है रेवेन्यू लाने की। आई थिंक जी कंपटीशन में हमेशा दौड़ रहती है रेवेन्यू लाने की, लेकिन उसको हम कहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड, कि आप रेवेन्यू भी लाएंगे लेकिन अच्छे बिजनेस से लाएंगे। जब आप ये लफ्ज़ ऐड कर देते हैं तो रेवेन्यू तो फिर भी लाना है। देखिए, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, नो बिजनेस एंटिटी सर्वाइव्स विदाउट बीइंग प्रॉफिटेबल। वो रेवेन्यू लाने से होती है। सवाल ये है कि रेवेन्यू अच्छे काम से ला रहे हैं, गलत काम से ला रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अच्छे काम से रेवेन्यू लाना है, साफ काम से लाना है, वो बिजनेस करें जो आप समझते हो। देखिए सर, इसमें एक सवाल बहुत अहम ये आ जाता है कि क्या ये चेक एंड बैलेंस करना, ये सारा रेगुलेशंस देखना, क्या ये बैंकिंग सेक्टर का काम है? मतलब ये असूली तौर पे तो मतलब गवर्नमेंट के और इदारे हैं, ये उनका काम है। मैंने शुरू में ही अर्ज़ किया कि मैं इसीलिए पहले सवाल जब आपने शुरू किया मुझसे, मैं हट गया बैंकिंग सेक्टर से। मैंने कहा ये पूरे सिस्टम का काम है, पूरे मुल्क का काम है, जिसमें बैंक्स का भी रोल है, रेगुलेटर्स का भी रोल है, कंपनियों का भी रोल है, इंडिविजुअल्स का भी रोल है। तो कई दफ़ा हमारे पास कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं ये सब सवाल हमें क्यों पूछ रहे हो। मुझे कल रात को एक बड़ी सीनियर खातून बिजनेस वूमन का फ़ोन आया कि ये मुझसे ये सब चीज़ें क्यों मांगी जाती हैं। मैंने कहा जी देखें, आप एक बहुत वाइड रेंजिंग स्कोप का नॉलेज रखती हैं, आप खुद समझें कि इसके बगैर बैंक कैसे पता करे कि आपकी सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है। तो इसमें हमारा काम है एजुकेशन करना, लेकिन इसमें इंडिविजुअल्स को भी समझना पड़ेगा, और सच बात थोड़ी पेशेंस शो करनी पड़ेगी, और हमें समझना पड़ेगा हम एक दफ़ा इंफॉर्मेशन लें, कैसे उसको रिटेन करें। हम टाइम के साथ मुल्क में बेहतरी कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान में पिछले 3 साल में बहुत आगे चले हैं हम, और हमारी बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। हम आज बहुत बेहतर जगह पे हैं वर्सेस द लास्ट 10 ईयर। अगले 3 साल में इंशाल्लाह आई थिंक वी विल गेट इवन बेटर। दिस इज़ अ इवॉल्विंग जर्नी, इट डज टेक टाइम। एक आखिर लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि अभी भी कस्टमर जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर जाते हुए थोड़ा कतरा रहा है। जैसे एक ज़माने में एटीएम पे जाते हुए कतराता था, आज वो इंटरनेट बैंकिंग के हवाले से, क्योंकि यूरोप अमेरिका में तो एक डेली बात है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कस्टमर सोचता है कि यार मैं अगर अपना क्रेडिट कार्ड का कहीं नंबर दे दूँगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं अपना कहीं पिन यूज़ कर दूँगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं अगर इंटरनेट बैंकिंग पर ज़्यादा जाऊँगा तो कल कोई मेरे साथ क्राइम हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, change is hard. First of all, I'm one of the biggest proponents of digital banking. I strongly believe in it. At HBL, हमने बड़ा clear कह दिया है कि हम going forward banking नहीं करेंगे, बल्कि we are a technology company with a banking license. That's the motto of HBL. So we believe in digitization and digital initiatives, and we are going to launch more of them. But we have to appreciate लोग कहाँ हैं, लोगों की thinking क्या है। आप साग गोश्त खाना पसंद करते हैं, तो अगर मैं आपको खाली कहूँ कि खाली साग खा लें तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना, कि आदत हो जाए साग ही खाना है, गोश्त नहीं खाना उसके साथ। इट्स द सेम इन बैंकिंग। लोगों को, कस्टमर्स को थोड़ी आदत नहीं है डिजिटल बैंकिंग की।
आई थिंक जितना नए प्रोडक्ट्स आएंगे, जितना वो इस्तेमाल करेंगे, उतने वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। मेरा सवाल था क्राइम के हवाले से, उसमें जहन में आता है कि कहीं मिस यूज़ ऑफ अवर हो जाएगा कम। तो मैं उस पर भी आता हूँ। पहली बात ये ना कि लोगों को आदत हो, और उसमें इसीलिए एट HBL वी वांट टू टॉक अबाउट डिजिटल विद अ ह्यूमन टच। नाउ व्हाई डू आई से दैट? उसमें एक तो कस्टमर्स को बेहतर समझ आएगी प्रोडक्ट्स क्या है, दूसरा उनका कंफर्ट लेवल बढ़ाएंगे ताकि उनको एजुकेट करें। नाज़रीन, जमील अहमद साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक। सर अस्सलाम वालेकुम। जमील साहब फरमाएं, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, गो के बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी तशवीश पाई जाती है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, डॉलर जो पाकिस्तान करेंसी का जो एक डिफरेंस है उसके हवाले से। तो कोई ख़ास आप खुशखबरी पाकिस्तानी अवाम को देना चाहेंगे इस हवाले से कि आगे जो है चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस वक्त देखें तो पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट का एक जो वोलेटिलिटी और पीछे प्रेशर नज़र आता था, तो अब पिछले कुछ महीनों से बड़ी स्टेबल पोजीशन है। उसमें एक्सचेंज रेट की बिल्कुल कंसिस्टेंटली जो है वो स्मूथली मूव कर रहा है, और साथ ही साथ जो है वो सरप्लस, स्टेट सरप्लस भी पिछले महीने हमने देखा, और जो डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट के जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो गए हैं। उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, स्टेट बैंक की तरफ से बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, और इन सब एक्शंस के नतीजे में अब एक्सटर्नल सेक्टर की पोजीशन जो है वो बहुत इम्प्रूव कर गई है, और उसके नतीजे में जो मार्केट पे जो प्रेशर था पहले, वो भी अब काफ़ी हद तक जो है वो उसमें मार्केट स्मूथली मूव कर रही हैं। ये फरमाएं कि आज जैसे गवर्नर स्टेट बैंक ने भी बात की कि इंपोर्ट के हवाले से कुछ रिलैक्सेशन जो है मुमकिन है कि आगे दिया जाए, क्योंकि कुछ स्टेबिलिटी आ गई है। तो जहाँ पे जो ये कहना चाहिए कि जिस कॉस्ट पे हमने या जिस कुर्बानी पे हमने इस सर्वाइवल थे, उसको थोड़ा सा देखा जाएगा, और अब जो कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे मार्केट को, मैन्युफैक्चरर्स को, और इसी तरह मैन्युफैक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इंपोर्ट्स प्रोडक्ट जो है उस पर कुछ ड्यूटीज़ कम हो सकें। एक्सटर्नल साइड की सिचुएशन जब काफ़ी ख़राब थी 1-1.5 साल पहले, और उसके बाद हमने जुलाई 2018 के अंदर कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी इंपोर्ट से रिलेटेड, और अब जैसे जैसे पोजीशन बेहतर हो रही है तो उसको हमने रिव्यू करना शुरू कर दिया है। अभी आप देखें 2 दिन पहले ही हमने जो एडवांस पेमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी कि 10,000 से ज़्यादा जो है वो एडवांस पेमेंट इंपोर्ट्स के अगेंस्ट नहीं की जा सकती थी, तो उसको हमने रिलैक्स किया है, और अब जो है वो 50% तक कोई भी इंपोर्टर जो है वो LC के अगेंस्ट जो है वो एडवांस पेमेंट कर सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप है जो स्टेट बैंक ने लिया है, और इसके साथ आगे भी हम पोजीशन रिव्यू करते रहेंगे, और जैसे जैसे मज़ीद बेहतरी आएगी तो इन चीज़ों को हम जो है रिव्यू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद इरफान अली साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम जी। इरफान साहब फरमाएं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए नेक्स्ट 2 मंथ, जनवरी एंड फरवरी, और फरवरी में FATF के हवाले से इम्पॉर्टेंट डिसीजन आना है। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देना बाकी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा, और हम हमारे जो तमाम इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं, तो स्टेट बैंक ने जितने मेजर्स करने थे या जो स्टेप्स लेने थे वो हम ले चुके हैं, जिसमें एक नेशनल रिस्क असेसमेंट है जो कि डिसमिनेट हो गई है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग पर काम मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद ट्रांसनेशनल TF रिस्क है, उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ और इवन SECP ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और सबसे अहम बात यह है कि हम सब ने अपनी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जो रिस्क की जो समझ है या अंडरस्टैंडिंग है, हमने बहुत बेहतर की है, और पाकिस्तान के वैसे भी मारूजी हालात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो गया है, GDP ग्रोथ आ रही है, करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव हो गया है, तो पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की की राह पे गामजन है, और FATF एक्शन प्लान को भी हम इसी स्पिरिट से एड्रेस करने की। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ फरमाएं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक ग्लोबल फिनोमेना है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, दुनिया भर में है, और मनी लॉन्ड्रिंग की अभी हमारी एवेल्यूशन होकर हटी है पिछले साल, और उसके भी कुछ टारगेट्स हैं जो कि जिसको हम MER या म्यूचुअल एवेल्यूशन कहते हैं। वो टारगेट्स के लिए हमारे पास अगले साल तक का टाइम है, जिसमें हमने अपने कुछ कवानीन में चेंजेस लाने हैं, कुछ रेगुलेशंस में चेंजेस लाने हैं,
जो इंशाल्लाह हम लाएंगे और हमारा मैंडेट है तो स्टेट बैंक अपना काम इंशाल्लाह पूरा करेगा। ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट की विल है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और तमाम जो सेक्टर्स हैं तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो तमाम सेक्टर्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, जो फ्यूचर में चीज़ें तो होनी है वो तो होनी है, लेकिन इसमें जो माजी में चीज़ें हो चुकी हैं वो कुछ भी आप समझते हैं कि उसका कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, कुछ अकाउंटेबिलिटीज़ होंगी, कुछ पाकिस्तान के उससे भी कुछ रिजर्व्स बढ़ेंगे? जी अच्छा, रिजर्व्स का तो इस पूरी बात से कोई ताल्लुक नहीं है, पर जो माजी में भी अब माजी था ना कि जिन्होंने माजी में मनी लॉन्ड्रिंग की ये चीज़ें की वो सारा पाकिस्तान के अकाउंट्स में आएगा तो उससे कोई रिजर्व। आप अभी देख ही रहे हैं कि जब भी जो लेटली जो कुछ भी हुआ है वो उसी जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की वजह से जो पाकिस्तान में पैसे हैं तो ये पैसे तो आने शुरू हो गए हैं और ये हमारे रिजर्व्स में जा रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म तो फुली इन प्लेस है और उसके ऊपर पूरी तरह काम हो रहा है। जो रिसेंटली भी जो काफ़ी मेरा ख्याल है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट काफ़ी काम हुआ है और उसका एक सबसे बड़ा बैरोमीटर या जो अंडरस्टैंडिंग वो ये आप देखिए कि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल हुआ है लेकिन अभी नीचे नहीं आया है। एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया है और बल्कि नीचे आया है, ये 162 रुपये से 155 पे, तो 9% कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि डॉलराइजेशन नहीं हो रही, मनी लॉन्ड्रिंग इंसेंटिव्स कम हो रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज। इंपोर्ट बढ़ेगी तो शायद हो सकता है उससे फिर फर्क। इंपोर्ट बढ़ेगी तो उससे उसका डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, पर मनी लॉन्ड्रिंग इज डेफिनेटली। नाज़रीन, यूबीएल से साजिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं और एचबीएल से अरमगान कौसर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आप दोनों को। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आप दोनों काम कर रहे हैं। आप फरमाएं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप एक बिज़नेस एक्सपर्ट के तौर पे या एक आम आदमी के तौर पे भी देखें, क्योंकि कस्टमर भी आते हैं आपके बैंक्स के अंदर, तो कुछ लोग होपफुल हैं इस गवर्नमेंट से। जी हाँ, देखें जो बेसिकली मुश्किल टाइम था वो खासी हद तक बेसिकली गुजर चुका है। आज आप देखेंगे कि एक्सचेंज पे भी वो वाला प्रेशर नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि शायद बैकवर्ड मूव करे। इसी तरीके से एक्सटर्नल एजेंसीज, मल्टीलेटरल एजेंसीज आपको बेसिकली लेंड कर रहे हैं जो वो पहले दे वर नॉट लेंडिंग और नॉट वेरी फोर्थ कमिंग। सो चीज़ें ठीक हो रही हैं, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, इंपोर्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज, बेसिकली एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ स्टेट बैंक विच इज़ मच बेटर देन बिफोर। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। सो यही जो गैप है ये जितना कम होता जाएगा कंट्री में उतना बेसिकली बेहतर होता जाएगा फ्रॉम ए फिस्कल एंड फ्रॉम एन बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप के हिसाब से। तो फॉर अ लेमैन सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। महंगाई पे ज़्यादा कंट्रोल बेसिकली करेंगे, प्राइस कंट्रोल को इफेक्टिव करेंगे। दिस इज़ ए बेसिकली एक किस्म का टेम्पररी इशू लगता है। लोग नेगेटिव साइड पे ना जाएं, कुछ होप्स रखें। गवर्नमेंट बेसिकली कोशिश कर रही है, मुश्किल हालात थे लेकिन अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती नज़र आएंगी। महंगाई भी नीचे जानी चाहिए, रेट भी नीचे जाने चाहिए और ये एक साइकिल आता है पाकिस्तान में हर 2-4-5 साल बाद। जब एक हुकूमत जाती है दूसरी आती है तो कुछ थोड़ी सी रिपेमेंट्स भी इस तरीके से टाइम होती हैं कि वो नई हुकूमत के टाइम पे जब आती हैं तो दे देन हैव टू ग्रैपल विद द सिचुएशन। तो उसमें थोड़ा सा टाइमिंग की बात की जा सकती है कि थोड़ा लेट हो गया होगा, लेकिन जनरली अब चीज़ें कंट्रोल में हैं और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सर, ग्लोबली अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट जो अरमगान साहब, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना या पाकिस्तानी जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका इन्वेस्टमेंट करना जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी हमने 1-1.5 साल में इसमें कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं देखी। तो इस पर आपको क्या नज़र आ रहा है? आई थिंक वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी है। देखें, मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुका हूँ मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ। तो सबसे पहली चीज़ जो एक इन्वेस्टर चाहता है वो ट्रस्ट चाहता है। अभी आपने देखा कि रिसेंटली काफ़ी मनी डॉलर टर्म्स में वापस आई है सिस्टम के अंदर ओवरसीज़ से, तो वो ट्रस्ट बहाल होना शुरू हो गया है। जिस तरह साजिद ने भी बात की थी मैक्रो इकनॉमिक कंडीशंस की, जब फाउंडेशनल लेयर हमने सेटल कर दी है, आपके फिजिकल मेजर्स, आपकी एक्सचेंज पॉलिसी और इकोनॉमिक्स की जो फाउंडेशन चीज़ें वो ठीक हो गई हैं। सो इंशाल्लाह टॉकिंग पॉजिटिव, आई एम वेरी होपफुल कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो ट्रस्ट फैक्टर है इसको सस्टेन करना है हमने। अगर हमने सस्टेन कर लिया और कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ रखी तो इस रिजीम में और इस जो भी पॉलिसीज़ मैटर चल रहे हैं, वी आर वेरी होपफुल एंड एज पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम।
नाज़रीन, हमारे साथ हैं सैयद आमिर अली साहब, आप प्रेसिडेंट एंड CEO हैं बैंक इस्लामी के। जनाब फरमाइए, ये जो आज बात हो रही है फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से, पाकिस्तान में ओवरऑल आप क्या देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइम है, जो कि एक बड़ा सवाल उठता है इस हवाले से, इसमें कोई बहुत बड़ी हम कोई न्यूज़ देखते नहीं हैं, या इसमें कोई हम देखते नहीं हैं कि इसमें कोई इस तरह इस सिलसिले में चीज़ें हुई हों, बस ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल एनवायरनमेंट है। क्या ऐसे ही है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी हद तक आपकी बात सही है, लेकिन अब जो है वो पूरी दुनिया के हालात ना बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। जब 9/11 हुआ उसके बाद से चीज़ें बहुत बदलीं। उसके बाद भी कई ऐसे दुनिया के अंदर हालात व वाक़यात हुए जहाँ से चीज़ों को बदलना शुरू हुआ, और एक चीज़ जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की समझ में आई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की समझ में आई, वो ये थी कि कोई भी जो क्राइम होता है, जो प्राइमरी क्राइम होता है, वो चोरी भी हो सकती है, खुदा कत्ल भी हो सकता है, ड्रग्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, टेररिज्म भी हो सकती है। उन्होंने ये समझा तकरीबन 99.99% ये प्राइमरी क्राइम्स होते हैं, इनकी प्रेडिकेट ऑफेंस जो होता है वो फाइनेंशियल क्राइम होता है, क्योंकि वो जो पैसे होते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जाना होता है। वो या तो करेंसी फॉर्म में मूव करेंगे, तो बैंकिंग के अंदर कहीं से लैंड करेंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है तो कोई ना कोई बैंकिंग चैनल यूज़ होगा। तो वहाँ से ये जो फाइनेंशियल क्राइम की टर्मिनोलॉजी थी और फिर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बनना दुनिया के अंदर, वो ये था कि जब हर क्राइम एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में टर्मिनेट हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है, तो अगर हम वहाँ से उसको डिटेक्ट करना शुरू कर दें और वहाँ से करके रिवर्स जाएं, तो बहुत सारे आप एक्चुअल प्राइमरी क्राइम्स कंट्रोल कर सकते हैं। टेररिज्म एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। जैसे टेररिज्म के अंदर फाइनेंशियल क्राइम ऐसा प्रेडिकेट ऑफेंस है जो पहले फाइनेंशियल क्राइम होता है और बाद में टेररिज्म होता है। मतलब पहले पैसे आएंगे तो टेररिस्ट के पास फंडिंग होगी, तो वो कोई खुदा न खास्ता ऐसी एक्टिविटी करेगा। इस सिलसिले में क्या समझते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में क्या ख़ास कोई प्रिकॉशंस हुई हैं? जी बिल्कुल। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए 2010 के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, 2012 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस आए, उसके बाद 2017-18 के अंदर जो काम होता रहा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैंक्स अब द कर्व आ गए, कंप्लाइंस डिपार्टमेंट सेटअप हो गए। हम रेड टैक्स कहते हैं, जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के, जो स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि यार कौन सी ट्रांजैक्शंस अनयूजुअल हैं, उनको वो डिटेक्ट करके बाहर निकालते हैं। कंप्लाइंस की टीम्स हैं, वो मॉनिटरिंग कर रही होती हैं। STRs के मैकेनिज़्म हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, CTRs के मैकेनिज़्म हैं। फिर एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया, जो स्टेट बैंक के साथ मिलकर काम करता है, जो इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को फिर इन्वेस्टिगेट करता है। तो बहुत सारा काम इसके ऊपर हुआ है। नाज़रीन, हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आरिफ उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अच्छा फरमाएं कि क्या इनिशिएटिव्स हैं नेशनल बैंक के आजकल ख़ास तौर पे कि जिससे हमारी जो इकॉनमी है उसको सपोर्ट मिले भरपूर अंदाज में? बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ मुझे 9-10 महीने हुए नेशनल बैंक में। एक चीज़ जो मैंने देखी थी कि नेशनल बैंक वाज बिकमिंग अ लिटिल बिट मोर just a commercial bank, a larger version of other banks. So what we decided to do was try to put the word national back in national bank. और हमने एक नई डिवीजन शुरू की है, focused on very specific sectors that are neglected traditionally by banks. जैसे एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में इतना ही काम हो रहा था जितना कि स्टेट बैंक की पेनल्टी से बचने के लिए। तो हमने उसको हटाने के लिए हमने कहा कि नेशनल एग्रीकल्चर में बहुत ख़ास इनिशिएटिव लिया। मैं पिछले हफ्ते पेशावर में था, उससे पहले इस्लामाबाद में था, तो रेगुलर जाना होता है। अब वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल छोटे लोग हैं जो ग्रेनाइट माइनिंग करते हैं, उनको कोई पैसे नहीं देता, और ग्रेनाइट इंडस्ट्री की सिर्फ $9 बिलियन की कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की। ऑलिव ऑयल की इंडस्ट्री को मैं फाइनेंस कर रहा हूँ। ऑलिव ऑयल हमारा जब इटली गया था अभी रिसेंटली, एक बोतल भर के, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर ऑलिव ऑयल दुनिया में नहीं है, उनको कोई पैसे नहीं देता। तो मैं इस किस्म की हरकतें कर रहा हूँ कि जहाँ पे दूसरे बैंक नहीं जाते हैं। लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट का एक बड़ा सवाल है। इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपको यकीन नहीं आएगा कि स्टेट बैंक की इतनी स्कीम्स हैं जो बैंक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सब्सिडाइज एग्रीकल्चर के लिए। तो मैं इस तरफ नेशनल बैंक को ले जा रहा हूँ जहाँ पे इम्पैक्ट हो GDP पे, जहाँ पे नौकरी मिले लोगों को, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो। अब एक आप अगर ऑलिव ट्री फाइनेंस करते हैं ना, तो वो 900 साल चलता है, 5 साल में फल देता है। तो पहले 5 साल तो उसको आपको पेशेंस, बहुत काम हो रहा है। मैं बता रहा हूँ नेशनल बैंक में इंशाल्लाह। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नेशनल बैंक में CSR प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी भी CSR तो खैर इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने इस दफ़ा ये किया है कि CSR का एक बाकायदा फॉर्मली बजट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो बनाया है। उसको हम एंडाउमेंट फंड की तरह रखेंगे। उसको आप पहले ले लेंगे 1 जनवरी को, और उसको खर्च करेंगे। अपने जो सेक्टर्स हैं जो हमने डिफाइन किए, उनकी
मुनासिबत से। ये जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ शोबों के अंदर लोन्स देना शुरू किए हैं, और उसमें ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नेशनल बैंक का। कामयाब जवान एक प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम जो है, तो उस नेशनल बैंक के पास 476,000 4,76,000 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से हम एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। हमने एक्चुअली पोर्टल हुकूमत से कह के रुकवा दिया है, क्योंकि बैंकों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। सिर्फ 3 बैंक हैं इसमें, हम, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, तो इसमें और बैंकों को लाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिलियन एप्लीकेशंस आ गई हैं। 200-300 लोग रोज बैठ के, आगाज भी हो गया है, देना शुरू हो गया। हमने दे दिए, कुछ पैसे दे भी दिए, बैंक ऑफ खैबर ने भी दे दिए हैं। और एम्प्लॉयमेंट इज मेन ऑब्जेक्टिव। आप किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर से रिसेंटली मुलाकात करें, बात करें, वो भी अब बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की। स्टेबल इकोनॉमी तो है, गवर्नर साहब ने भी आज इस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, स्टेबिलिटी इज नॉट द आंसर, स्टेबिलिटी इज ओनली अ प्री रिक्विजिट, कि अब काम करना है, ग्रोथ करनी है। इतने ग्रेजुएट्स, इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग हैं कि अनलेस। पिछले दिनों सर एक न्यूज़ आई थी कि 5 लाख से ज़्यादा अगर कोई बैंक में रखेगा तो उससे बड़ा क्वेश्चन से पूछा जाएगा, जिसके वजह से हमने देखा कि जो खासतौर पर छोटे ताजिर हैं, उन्होंने जो है वो अगर किसी के 5 लाख से ज़्यादा थे तो उन्होंने बैंक से निकालना शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान का एक मसला है ये कि एक लोग कैश जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से किसी ने बताया मुझे रिसेंटली, एग्जैक्ट नंबर तो 40 या 42% ऑफ द M2, मतलब डिपॉजिट्स और कैश मनी सर्कुलेशन के 40% कैश है। तो अब इतना जब कैश है, इसका मतलब क्या है कि लोग डरते हैं कि वो लेकिन बैंक में अगर कोई फाइलर नहीं है और उसके बैंक में अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उसे क्या एडवाइस देंगे आप? फाइलर बने, लेकिन अब इस एक डर और खौफ भी तो आ गया है ना। इस चीज़ का है। वैसे देखिए, डर इस बात का होता है कि वो हुकूमत से पे कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों को। पाकिस्तान इज द नंबर 1 कंट्री दैट गिव्स चैरिटी। आपको पता है मैं इंडस हॉस्पिटल को क्यों देता हूँ पैसे? क्योंकि खर्च होता है, नजर आता है। इंडस हॉस्पिटल, TCF, मैं 1000 इदारे, शौकत खानम, आप देख ले हर जगह जहां लोग तैयार हैं, जो उनको पैसा इस्तेमाल हो रहा है सही इस्तेमाल। मेरा सवाल ये था कि वो जो एक जो ये जो रूमर थी या ये खौफ भी जो था, उसकी वजह से जो बैंक से पैसा पिछले दिनों में 1 साल में निकला है, उसकी कुछ रिप्लेसमेंट हुई है या कुछ वापस आना शुरू हो गया बैंक्स में? बैंक्स में ही आएगा। खर्च होगा, किसी आप 5 लाख निकाल के खर्च करेंगे, जिसको देंगे शायद वो फाइलर हो, तो वो अल्टीमेटली आ तो जाएगा सर्कुलेशन में, बट टेम्परेरीली बहुत बाहर है पैसा, बहुत। आप यू राइट, क्योंकि नीचे बहुत पैसा है। नाज़रीन, हमारे साथ हैं सैयद अब्दुल कादिर साहब, आप डायरेक्टर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड रिस्क एश्योरेंस AF फर्गूसन एंड कंपनी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये फरमाएं कि साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से पाकिस्तान आप क्या देखते हैं कि किस जगह पर है, अगर हम कंपैरिजन टू द वर्ल्ड करें, और बड़े फाइनेंशियल इसमें क्राइम होते हैं बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, हम कुछ बेहतर जगह पर हैं? देखिए, ओवरऑल अगर आप पूरा साइबर सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ द पाकिस्तान कहेंगे तो ये डे बाय डे अनफॉर्चुनेटली डिटेरियोरेट हो रहा है। अनफॉर्चुनेट डिटेरियोरेट इस तरह हो रहा है कि आप इंसिडेंट्स के हिसाब से देख सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी इस वक्त फाइनेंशियल इम्पैक्ट आने लगा है ड्यू टू द साइबर क्राइम अटैक्स। अच्छा, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं बिकॉज ऑफ द टोन एट द टॉप फ्रॉम गवर्नमेंट, या सपोर्ट नहीं है। थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए साइबर सिक्योरिटी पोस्चर इंप्रूव करने के लिए। दुनिया में नेशनल साइबर सिक्योरिटी फोरम्स बने हुए हैं, नेशनल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस मैकेनिज़्म है। पाकिस्तान इस वक्त इवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल एंड साइबर क्राइम बिल आया है, लेकिन इट इज़ मोर टूवर्ड्स, रिजवान आप जानते हैं कि वो फेसबुक के और हरेसमेंट और इस तरह के मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइम की सिक्योरिटी के लिए नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक दिन के अंदर अगर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन बैंक्स के अंदर हो रहे हैं तो वो बग़ैर ऑटोमेशन के नहीं हो सकते। और ये जो चीज़ें हैं ना, साइबर क्राइम अटैक, हमने दुनिया में देखा है कि 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं साइबर अटैक के ज़रिए, और वो इतना ऑर्गेनाइज क्राइम होता है कि 28 कंट्रीज से एक साथ वो अटैक किया जाता है। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ पिछले सालों में बांग्लादेश के अंदर, और एक वहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश है, वहाँ से अमाउंट जो है उस पर एक साइबर अटैक हुआ, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की कोई गुंजाइश पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर भी मौजूद है, यहाँ पे भी कोई अटैक कर सकता है और उसकी, या नहीं हो सकता, बिल्कुल हमारा सेफ़ एंड सिक्योर जो है सारा निज़ाम है? देखिए, हम अपने आप को सिर्फ, मैं विदाउट एनी ब्लोइंग द ओन ट्रम्पेट, बट
ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा सिक्योरिटी पोस्चर की रेगुलेटर लेवल पे सपोर्ट है और रेगुलेटर लेवल पे बेहतर है, बट $81 मिलियन का वो जो अटैक हुआ था बांग्लादेश का स्विफ्ट के ज़रिए, वो एक्चुअली $900 मिलियन का अटैक था। गुड लक से $811 मिलियन जो बचे थे वो इस वजह से बचे थे कि उनका स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी अटैकर्स की। तो देखिए मसला क्या है, 2017 में WannaCry का नाम से एक अटैक सुना होगा आपने, बड़ा मशहूर हुआ था, वो रैंसमवेयर अटैक था, उससे 200 मुल्कों में अटैक हुआ था और यूके के हॉस्पिटल्स, रशिया के ट्रेन स्टेशंस, यूएसए के मल्टीनेशनल्स, एक्सचेंज, बैंक्स, वो बिल्कुल स्टक हो गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि उनके सिस्टम ब्लॉक कर दिए गए थे, इनक्रिप्ट कर दिए गए थे, और डिक्रिप्ट करने के लिए वो कह रहे थे कि इसको ना बिटकॉइन के ज़रिए आप पेमेंट करेंगे तो आपको इसके सिस्टम ओपन करके दिए जाएंगे। तो कैन यू इमेजिन द रिलेंटलेस ग्रोथ ऑफ द साइबर अटैक, ठीक है, एंड द रेप्रिकॉशंस ऑफ दी साइबर अटैक्स। तो इस सिलसिले में बताएं कि इसमें हॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो बड़ी दिलचस्प बनती हैं और उसमें वो मतलब क्या कुछ हो जाता है वहाँ पे, तो लेकिन उसमें एक सवाल ज़रूर पैदा होता है जब हम वो मूवीज़ देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और जितना हम ये लोगों को बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से हम सिक्योर हो रहे हैं, शायद उतना हम रिस्क फैक्टर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो जाए 110%। जिस तरह कहते हैं ना कि परवरिश करता है ज़माना बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो एक्चुअली ये मसला है हमारे करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली मैं सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि वक्त ने इतनी ज़्यादा परवरिश कर ली है कि हमारे देखें एक बहुत बड़ा मैटर रिजवान, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के एकेडमिक ग्रास रूट लेवल पे ना सिक्योरिटी की तालीम नहीं दी जाती। आप ये देखें कि इस वक्त मेरे पास मोर देन 100 का स्टाफ मेरे अंडर में पूरे पाकिस्तान में, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की हम मेरे अंडर में काम कर रही है। हाउएवर 90% ऑफ दोज आर फ्रॉम द टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, फ्रॉम द IT बैकग्राउंड एंड फ्रॉम द अकाउंटेंसी बैकग्राउंड, जो कि लेकिन उनका साइबर सिक्योरिटी का बैकग्राउंड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंटर की लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ पे, बैचलर्स के दौरान साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, क्योंकि देखें अभी हम माशाल्लाह बड़े बड़े बैंकर्स के साथ बैठे हुए हैं और मैनी प्रेसिडेंट्स का इस वक्त पैनल था। आप इमेजिन करें ये जितने भी बैंकिंग के प्रेसिडेंट्स हैं, ये मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं अपनी सुपरविजन के अंदर, लेकिन क्या वो मैनुअली कोई वेरीफाई कर सकता है? क्या वो मैनुअली सिक्योर कर सकता है? क्या वो मैनुअली सेव कर सकता है? नहीं, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, सो इट रिक्वायर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इट रिक्वायर्ड डिजिटल सिक्योरिटी एज वेल। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें सबसे पहले ओवरऑल इनकलकेट कर देना चाहिए नॉर्मल लाइफ के अंदर। देखिए कॉमन पीपल के लिए भी फेसबुक की आईडी भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीमी इदारों को भी है कि वहाँ पर भी जो है लिंक किया जाए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से चीज़ों को, फिर जो डिग्रीज़ दी जा रही हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सामने होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इवन आज के इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आप अगर MBBS भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी सेक्टर्स में तो है ही है। तो उसमें ज़रूरी है कि जो तालीमी इदारे हैं उधर से ही इसका आगाज़ हो। एब्सोल्युटली राइट इज़वान, मतलब आपने वो जो है ना क्या है नेल इन द कॉफिन कर दिया इसका लास्ट बात करके। बहुत क्रिटिकल बात है कि देखें तालीम बच्चों के लेवल पे हमने जैसे कहते हैं ना कि एक जूनियर लेवल पे ही अगर उसकी बेसिक एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नाज़रीन हमारे साथ हैं मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब, आप प्रेसिडेंट हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बोस्तान साहब, क्या हाल कर दिया है आपने पाकिस्तानी करेंसी का? और बड़ा अच्छा हाल कर दिया, बेहाल से हाल वैसे तो बहुत हाई पे गया डॉलर और अब दोबारा हम देख रहे हैं कि स्टेबल पोजीशन पर है, लेकिन लोगों की ख्वाहिश है कि 100 रुपये पे आ जाए। इंशाल्लाह आ भी सकते हैं, क्योंकि जब 164 से 155 से भी आप नीचे आ गया तो दुआ करें, हम तो कहते हैं दोबारा 60 पे चला जाए। पाकिस्तान में दुआ करें कोई तेल शेल निकल आए और हमें पाकिस्तान भी इतनी तरक्की कर जाए कि हमारा रुपया मजबूत हो जाए। लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम लोग आवाम का इसमें बड़ा मैं समझता हूँ रोल है, पाकिस्तानी रुपये को मजबूत करने में हुकूमत से ज़्यादा पाकिस्तान आवाम का रोल मैं समझता हूँ। क्योंकि जून में इसी डॉलर ने 164 का लाइफ टाइम हाई बनाया था। उसके बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी आप फॉरेन एक्सचेंज का बिज़नेस करते हैं और आप जो है पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज कमी का सामना है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क को डॉलर दें। तो उसके बाद हमने आवाम से अपील की
عوام سے ہم نے ریکویسٹ کی, انہیں سمجھایا کہ ڈالر میں انویسٹمنٹ کرنا کسی طرح نہ آپ کے مفاد میں نہ ملک کے مفاد میں. آپ اگر ڈالر کے بجائے پاکستانی روپے میں انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہے, ملک کو بھی فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد عوام نے, اور اب میں نے تو بلکہ یہ یہاں تک کہا کہ آپ ڈالر کا بائیکاٹ کریں, جن کو ضرورت نہیں ہے وہ بلا ضرورت نہ خریدیں. تو عوام نے ہماری اس اپیل پہ لبیک کہا, اور اس دن سے لے کے آج تک روزانہ ہمارے کاؤنٹر پر ڈالر جو ہے 10 سے 12 ملین ڈالر کی ایکویلنٹ فارن کرنسیاں لوگ بیچنے آ رہے ہیں, جس میں ریال ہیں, درہم ہیں, پاؤنڈ ہیں, یورو ہیں, جو بھی تھرڈ کرنسی ہیں. تو لوگ اب ڈالر بالکل نہیں خرید رہے. 95% لوگ سیل کریں, 5% وہ سفر کرتے ہیں جو ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, وہ لوگ خرید رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں عوام کی جب ڈالر کی خریداری کم ہوئی تو ڈیمانڈ کم ہوئی, اور فری مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ آج انٹر بینکس بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. سر یہ فرمائیں کہ ایک پچھلے دنوں ایک ریومر کہہ لیں کہ آئی تھی, یا کچھ لوگ اس پر بات کر رہے تھے کہ یہ جو پرائیویٹ ایکسچینج کمپنیز ہیں جو آپ لوگوں کے تمام پاکستان بھر میں موجود ہیں, ان کو شاید بند کر دیا جائے گا اور صرف بینک کے ذریعے ہی جو بھی سیل پرچیز ہے کرنسی کے حوالے سے وہیں ہوگی. نہیں, یہ بالکل بے بنیاد خبر تھی, افواہیں تھی. اور اسٹیٹ بینک نے صرف اتنا کہا تھا کہ جو کمرشل بینک ہے وہ بھی فارن کرنسی کا خرید و فروخت کر سکتے ہیں. ان کو پہلے بھی ان کو دوبارہ کہا کہ آپ بھی کریں, تو اس سے لوگوں نے اس کو, جو میڈیا میں یہ خبر آ گئی, جو پاکستان میں جتنی بھی ایکسچینج کمپنی ان کو کلوز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم اسٹیٹ بینک سے ملے, پھر میڈیا میں ہم نے اس کی, اور اسٹیٹ بینک نے بھی تردید کی کوئی ایسا کوئی نہ پلان ہے نہ آئندہ ہونے والا ہے. اچھا سر, یہ جو FATF پہ چیلنج ہے اس میں یہ ایکسچینج کمپنیز ہیں, ان کا بڑا رول رہا ہے, اور ٹیرر فائننسنگ یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, جو اس کی کانفرنس بھی اسی موضوع پہ ہو رہی ہے کہ فائنینشیل کرائم کو روکا جائے بینکنگ سیکٹر کے اندر اور اس طرح بھی, تو کیا آپ لوگوں نے کچھ اپنا پریکاشنز کیے, چیکس لگائے ہیں کہ اب اس طرح سے نہ ہو آگے فیوچر میں؟ جی بالکل, سب سے زیادہ چیک تو ایکسچینج کمپنیوں نے لگائے ہیں. اور میں نے جیسے ابھی اپنی اسپیچ میں بھی یہی کہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی پاکستان پہلا ملک ہے جس نے ایکسچینج کمپنیوں کو پابند کیا ہے کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہیں اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے 2 مہینے کے لیے. تو یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس سے بڑی میرا خیال ہے سختی کسی دنیا میں نہیں ہے, اور پاکستان اس پہ امپلیمنٹ کرایا اسٹیٹ بینک نے. وہ جو کاؤنٹر پہ آتا ہے وہ تو ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا سر, جو ویسے صرف ٹیلی فون پر ہی کال کر کے سارے کام ہو جاتے ہیں ایکسچینج کمپنی سے, ان کی کیا ریکارڈنگ ہے؟ نہیں, وہ اسٹیٹ بینک نے اس پہ پابندی لگا دی, آپ ڈیلیوری دے ہی نہیں سکتے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے پہلے یہ ہوتا کہ ڈیلیوری دے سکتے تھے, لیکن اس میں بھی مانیٹرنگ ہوتی تھی پہلے بھی. ایسے نہیں کہ پہلے بھی ایسا نہیں ہوتا تھا, ایسا امپاسبل ہے کہ فون پہ بغیر ڈاکومنٹ کے کسی کو دیا جائے. تو بینک میں لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا جاتا, ڈکیتیاں ہوتی تھی, لوگ لٹ جاتے تھے. تو لیکن اب تو اسٹیٹ بینک نے اس پہ پابندی لگا دی, جو بھی کلائنٹ پہلے کاؤنٹر پہ آئے گا اس کے بعد ٹرانزیکشن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں جتنی ایکسچینج کمپنیاں کمپلائنس کر رہی ہیں, جیسے کہ FATF اور ایشیا پیسیفک نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ایکسچینج کمپنی اور بینک بہت زیادہ جو ہے کمپلائنس پوری کر رہے ہیں اپنی. ناظرین, ابراہیم امین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ گروپ چیئرمین ہیں ڈیلسن گروپ آف کمپنیز کے. سر آپ اس کے آرگنائزر بھی ہیں. یہ فرمائیں ابراہیم صاحب, کیا آبجیکٹو تھا اس سمٹ کو کروانے کا؟ FATF ایکشن پلان, FATF ایکشن پلان پہ اویئرنیس سیشن اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور بینکنگ انڈسٹری کو ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے اکٹھا کرنا, اور DNFBPs جو کہ بزنس مین ہیں, نان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں, ان کو ایک چھت پہ اکٹھا کرنا اور اس پہ انٹلیکچوئل ڈسکشنز کرنا, اور اس کا وے فارورڈ کہ اب ہم ایسے کیا میجرز لیں ٹیکنالوجی کے, بینکنگ انڈسٹری کے, جو نان بینکنگ انڈسٹری ہے, جو جیمس اینڈ جویلرز ہیں, جو پراپرٹی ایجنٹس ہیں, جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں, ان سب کے ساتھ بیٹھنا, برین اسٹارمنگ کرنی کہ اب وے فارورڈ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ ایک چھت پہ ساری انڈسٹری کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا ایک چیلنج, بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, نہیں نو ڈاؤٹ, یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت زبردست اس ایریے کے تمام ہی ٹاپ لیڈرز یہاں پر موجود تھے, ان سے ہم نے بھی آج جو ہے بات کی, اور ہمارا بھی مقصد یہی رہا کہ ہم جو پاکستان کی اکانومی کو جو درپیش مسائل ہیں, اور خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر کے اندر جو کرائم بھی ہو رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ فالودے والے کا اکاؤنٹ نکل آیا, فلاں کا اکاؤنٹ نکل آیا. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس میں بھی ابھی ہم گھبراتے ہیں جاتے ہوئے کہ کہیں کوئی کرائم نہ ہو جائے. ہم اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر دیتے ہوئے, یا ہم جو ہے بینکنگ یعنی نیٹ بینکنگ کی طرف جاتے ہوئے, تو اس پر بھی ہم نے بات کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال جو ہے یہ کنٹرول بھی کر سکے گا فائنینشیل کرائم کو, یا منی لانڈرنگ کو, یا ٹیرر فائنینسنگ کو؟ اس کی طرف ابھی ہم لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں,
इसीलिए हमारे पास आज लोकल और इंटरनेशनल दोनों वेंडर्स, स्पीकर्स, टेक्नोलॉजी के लोग काफ़ी सारे मौजूद हैं और वो इसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। नाज़रीन, आज इस सेकंड फाइनेंशियल क्राइम समिट से हम बहुत सी उम्मीदें लेके जा रहे हैं और हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज फरवरी में FATF है। आज पाकिस्तान की टॉप फाइनेंशियल लीडरशिप जो है वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रही और उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को भी एक उम्मीद दिलाई कि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है जिससे हम काफ़ी हद तक निकल गए हैं, इसमें हम आगे बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे और उम्मीद है पाकिस्तान इकॉनमी के मैदान में बहुत तरक्की करेगा। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।